We have next up Sri Vijay Wadhwa in the house, who's of course a very well-known developer in the city. Mr. Wadhwa is the chairman emeritus of the Wadhwa Group, among the leading developers in the city. The group has several commercial, residential, and public buildings to his name, spanning across 15 million square feet. Sri Wadhwa will be in conversation with Vishal Bhargava, a well-known media professional who's had a very diverse experience in investment banking, in research, corporate strategy, and is now a columnist with Money Control. So, Mr. Wadhwa, I request you to please come on stage with Vishal Bhargava ji. So as far as real estate goes, I think for this session in particular, I think there's no other developer who's most equipped to answer the situation where we currently are. I was asking Mr. Wadhwa earlier, his first project, he told me it was in 1964. And he's one of the few developers I know of who's worked in the three core markets within MMR, Navi Mumbai, Mumbai, and Thane. So just sticking with that theme, sir. At this point, when you look at the three big markets, where are you most optimistic and bullish on for the future? See, today Bombay is growing from all sides. Market is there because people who are socially connected in Grant Road, they would like to stay in Grant Road. But the question is where you can lead a healthy life. Social infrastructure, convenience for the families, for the people. I think no, Navi Mumbai is a better planned city. Although the infrastructure of this city is coming up very fast in last few years, compliments to the government, to the officials who just spoke, hats off to them, how they have taken up so fast these things. But just by providing roads, you don't give everything. A lot of things are connected with real estate. Government has provided infrastructure. Navi Mumbai, I think, is a better place and the surroundings from quality of life point of view. The story of Navi Mumbai has been going on for quite long, since they first started developing it in the 70s. It's had a long journey where not a lot of activity took place. Do you think we are now in that stage where the Navi Mumbai market could land up becoming as big as Mumbai? See, in 1972, when New Mumbai was starting, we had seen Shirkeji's, tower cranes and precast housing. हमने कहा कौन जाएगा? But ultimately, it has penetrated so much inside, and the roads are wider. Navi Mumbai, prominent locations, yes. Why not? I'm aware of land prices in Juhu in 1974-75 were 7,000 rupees a yard. आदमी को उस वक्त 7,000 रुपया वाल में भी महंगा लगता था, और आज जहाँ पे आप देखो जाओ तो इट इज़ 2 लाख रुपए में भी आपको वाल में ज़मीन अवेलेबल नहीं है. So it is all depending on the location. Navi Mumbai has got a good future scope because of the basic infrastructure which is already developed by CIDCO. So the basic infrastructure is good, but the problem with Navi Mumbai has always been that while residential moved there, gardens we saw, we didn't see a lot of commerce. It lacked the vibrancy that Mumbai had. In last 10 years, 8 years, lot of IT parks have come up. Industries have closed down. नहीं तो वो जो ट्रांस इंडस्ट्रियल स्टेट था वो पहले इंडस्ट्रीज थी. पहले वहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी, सब्सिडरी देती थी टू पुट अप इंडस्ट्री देयर, कि आप 50 लाख की इंडस्ट्री डालो, हम आपको 25 लाख रुपया ये करते हैं. But they came, now all those are demolished and now new office buildings have come up. Okay, coming from Navi Mumbai to Mumbai. Yes. Once upon a time, not too long ago, when I used to be in school, there was South Bombay and there was the rest. Gradually in the last 15 years, South Bombay receded in its importance with the setting up of BKC and many other initiatives. Do you see the importance of South Bombay going down even further in the landscape of Mumbai? See, South Bombay has got very narrow roads and very limited infrastructure. आज आपके gardens किधर हैं, आपके schools किधर हैं, आज आदमी को जो चाहिए वो बॉम्बे में सिटी में अवेलेबल, एंड गवर्नमेंट हैज़ गॉट लिमिटेशंस. विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने रोड दे दिए, स्कूल्स कहाँ दिए, गार्डन्स कहाँ दिए हैं.
मेरे को तो आगे की चिंता है कि इतनी बिल्डिंगें, सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग आउट ऑफ द टॉपिक, ये इट्स अ थिंग टू वरी कि every second building is coming for redevelopment. Government has given incentive and heads off to corporation. ये बेस्ट धंधा करने का तरीका है, कुछ नहीं देने का, डेफिशिएंसी की भी प्रीमियम लेने का, सब कुछ ले लेने का. टुडे कॉरपोरेशन इज द रिचेस्ट फ्रॉम बिकॉज देना कुछ नहीं. आज रोड, आज आपको ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, पानी कहाँ है, आप क्या कर रहे हो, स्टॉर्म वाटर किधर है, वो ब्रिटिश के टाइम का डला हुआ है. आपको वो चीज़ों पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात है ना, नाउ इफ़ पीपल आर देयर, आप लोगों में से जो भी इन्वॉल्व है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेहरबानी करिए, ट्राई टू थिंक साइमल्टेनियसली ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. आई विल टेल यू, आज आप लोग बैठे हैं, जगाओ. मेंटल डिजीजेस बढ़ेंगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, ये जितनी बिल्डिंगें टूट रही हैं, इसका पोल्यूशन, आपके लंग्स का एक्सरे कराओ, सब में काले पड़े हुए होंगे. दिल्ली छोड़ो, दिल्ली में स्मोक है, यहाँ पे आपका डस्ट का पोल्यूशन आपको मार रहा है. उस पर कौन मेहनत कर रहा है? Are we supposed to work on that or we are supposed to just connect roads and other things? Roads बनाओ, कौन बोलता है नहीं बनाओ, पर पब्लिक की हेल्थ को भी तो देखो. आज सीनियर के लिए गार्डन कहाँ है बैठने के लिए, स्कूल्स किधर है, स्कूल्स को प्लेग्राउंड कहाँ है. आज बच्चों को ये आईपैड और इसकी आदत क्यों पड़ी हुई है? दे आर नॉट एक्सपोज टू ओपन लाइफ. सो वी हैव टू थिंक. आई थिंक यहाँ पे जो हैं, कौन कौन है मैं नहीं जानता हूँ, आप में जो भगवान ने ज्ञान दिया है, आई थिंक जागरूकता कराइए. अभी आप सीएम को बोलिए, कुछ करिए कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने रोड्स बना दिए, हेड्स ऑफ टू यू. जो आज तक नहीं हुआ, अभी हो रहा है. रोड्स जाके चोकअप होंगे, अल्टीमेटली वर्ली सिंह जाके बैंड्रा चोकअप होगा. अंदर का क्या हुआ? अंदर की स्ट्रीट वाइडनिंग हुई नहीं हुई, उसका क्या? आपने बड़े बड़े ट्रंक रोड्स बनाए, अभी आप बाकी स्कूल्स कहाँ हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? कितने हॉस्पिटल नए लॉन्च हुए हैं वो बताइए आप. इन बिल्डिंगों में जो 4 FSI आ रही है, FSI में पब्लिक बढ़ेगी, बीमार होगी. हॉस्पिटल्स हैं. आर इज समबडी हियर सिटिंग एंड टॉकिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल्स? नोबडी इज वर्किंग ऑन दैट. स्कूल्स के लिए बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो आदमी मेंटली वैसे ही डिप्रेशन में चला जाएगा. मैडम, होता है नहीं होता है? आपके बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स आर द वर्स्ट इफेक्टेड, नहीं मिलता है. और ये इतनी बिल्डिंगें बनने के बाद क्या होगा? इफ यू वांट, यू शुड राइट डाउन टू द गवर्नमेंट. Yeah. See, so, but I'll tell you, there's an intelligent way of thinking. आज इनने जो भाई साहब आए, जिनने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने क्रिएट किया है ना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया ना इनने पैसे को नहीं देखा, पैसा खर्चा किया, कैसे आएगा बाद में देखा जाएगा, पर आज तो बना दिया ना. लेआउट्स बनाने चाहिए. इन फॉरेन क्या होता है, इट शुड बी कंसोलिडेटेड लेआउट प्लान फॉर 40 acres. उसके अंदर जितने बिल्डर आवे, टाउन प्लानिंग स्कीम के हिसाब से उनका परसेंटेज मिलना चाहिए. उसके अंदर स्कूल भी प्लान करना चाहिए, हॉस्पिटल भी प्लान करना चाहिए. जैसे भिंडी बाजार की बात हुई, कितने स्कूल आ रहे हैं, कितना प्लान. इट हैज़ टू बी मास्टर प्लान्ड. आपने जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान किया, नाउ पीपल हैव टू थिंक ऑन मास्टर प्लानिंग द एरियाज. मेरे से कल किसी ने, आई थिंक आपने बात की थी कि बॉम्बे का क्रीम अभी, वाई बॉम्बे इज लूजिंग द बिजनेस चार्म. किसने पूछा था मेरे से, पता नहीं, आपने पूछा था. बहुत सिंपल है. वी वर द फर्स्ट इन BKC. हमने उस वक्त CM को बोला था, बॉम्बे का अगर आपको चार्म रखना है, हांगकांग, दुबई, लंदन के बीच में बॉम्बे है. बॉम्बे को आप इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर अनाउंस करो. BKC में अभी तक खाली फाइनेंस की बिल्डिंगें हैं, बाकी सब प्लॉट्स को बोलो ओनली फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर. बॉम्बे वुड हैव कंटिन्यूड टू बी ऑन द इंटरनेशनल मैप, बट इट हैज़ गॉन टू गुजरात. आज भी हो सकता है, विल होनी चाहिए. जो सॉल्ट पैन लैंड है, 2-2.5 एकड़ को, 500 एकड़ को आप इंटरनेशनल फाइनेंस करके आप उसको ईयर मार्क कर दीजिए, ऑक्शन इट, आने दो ना. वाई यू आर वांटिंग द, सी बॉम्बे इज अ हब, रिजर्व बैंक इधर, ये इधर, और बाकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज फॉरेनर्स की सब काउंसलेट्स बॉम्बे में बेस्ड हैं, फॉरेन के स्कूल्स बॉम्बे में बेस्ड हैं, पीपल आर यूज्ड टू बॉम्बे लाइफ. तो वाई यू डिस्कनेक्टिंग देम? Try to give them what is needed by them, what is needed by the. If suppose there are some people who are writing, please, gift city, Ahmedabad, ये क्यों गया, गांधीनगर क्यों गया, बॉम्बे को क्यों छोड़ा? It should have been a political decision कि हमको ये जाने नहीं देना है. आज भी चाहो, have a second international center in Bombay. It can be done very well. होनी चाहिए. आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना किया, इसके लिए भी आप बिल करो. एक सुनो, नहीं, वेरी सिंपल है. धारावी में यू आर टेकिंग, there are so many slums. I'll tell you, बात करना बहुत ईजी है लाला.
हम रियल एस्टेट में देखते हैं एक ऑक्यूपेंट, वी कांट स्पेंड लाइक मनी लाइक गवर्नमेंट डज 5 टाइम्स मोर 10 टाइम्स मोर. बिल्डर के लिए वर्स्ट पोजीशन आती है, वी हैव टू मेंटेन द टू एंड्स मीट. बिल्डर के लिए एक एंड प्राइस का एक कैप आता है, उसके अंदर एक लिमिटेड मार्जिन है. वे कॉरपोरेशन अपना शेयर ऑन डे वन ले लेता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, दे गेट एवरीथिंग. एवरीबडी वॉन्ट्स टू ईट द मैक्सिमम पाई एंड बिल्डर पीपल एक्सपेक्ट टू बी वेरी शरीफ. सब काम तुम करो, कैसे होगा? वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. कुछ मत करो, किसी को टच मत करो. सॉइल पेंट लैंड्स है ना, सॉइल पेंट लैंड्स को आप उसको 200 या 500 जितना एकड़ चाहिए, आप उसको आप इंटरनेशनल फाइनेंस कर दीजिए, ऑक्शन कर दीजिए, गवर्नमेंट बनावे ना. यू कैन डू इट, देयर इज नो आउटसाइडर इन्वॉल्व ना. किसी को लैंड का पैसा नहीं देना है, गवर्नमेंट की लैंड है, इट कैन बी डन. But I think one of the big problems with Mumbai is the strength is resilience, but I think that also becomes a weakness. Mumbai tends to, instead of finding a solution, it tends to start adjusting with the problem. So the problem that you spoke about, gardens, schools, we have found a good way around it where the developer builds a township, he provides everything, and things go on. इसी I'll tell you, कितने टाउनशिप्स के लिए आपको लैंड चाहिए. देखो यार, आज जो ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं 5,000 वाल 10,000 वाल, उसके अंदर जितना होता है बिल्डर अपने हिसाब से गार्डन देता है. वो स्कूल नहीं दे सकता है, हॉस्पिटल नहीं दे सकता है. बिल्डर को इंसेंटिव दो कि अगर आप 5 एकड़ का डेवलपमेंट कर रहे हो, आप कम से कम 10,000 फुट का आपको मेडिकल केयर सेंटर बनाना है, वो हम फ्री FSI देते हैं आपको. आपका क्या जाता है? गवर्नमेंट का कुछ जाता है, BMC का कुछ जाता है. आज बिल्डर का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट इज दी FSI. वो करने को तैयार है. आज के क्लब हाउस है, क्लब हाउस के लिए बिल्डर को 4% फ्री FSI मिलती है. तो हम बैडमिंटन कोर्ट्स नहीं दे सकते हैं बिकॉज 4% में नहीं होता है. तो गवर्नमेंट हैज़ टू सिट एंड लिसन टू अस. हम कहते हैं भैया हमको अगर 6% दो तो वी वुड लाइक टू गिव हेल्थ, जहाँ चिल्ड्रन अपना वर्कआउट करें, ओबेसिटी नहीं होवे, डायबिटीज़ नहीं होवे. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल हियर. वी जस्ट कांट लिसन एंड गो बैक होम विदाउट हैविंग अ लक्ष्य कि हमको बॉम्बे के सिटी को परिवर्तन करना है. परिवर्तन के लिए सबसे पहले विल चाहिए. विल होगी तो सब. अब इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था अपनी लाइफ में कि इतने रोड्स और ब्रिजेस और ये बनेगा. बनाना डिटर्मिनेशन था ना किसी का. हेड्स ऑफ टू दैट विजन ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी बोलो, ऑफिसर्स बोलो, दे हैव अचीव्ड इट ना. ये क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, विल होनी चाहिए. So tell me something, for like the situation currently with Mumbai, you said so many projects are coming up. हर जगह पे पतरा लग गया है. What does that mean away from the mental health issue which probably will happen in the medium term? We have seen this movie play out before. People go all out without protection. Builders, I mean. Do you think the same thing will happen now? क्यों नहीं हो सकता है? विथ टू मच सप्लाई. अभी देखो क्या हुआ है, कोविड के टाइम पे सब शेल में चले गए थे. शेयर बाजार वॉज नॉट डूइंग गुड. नाउ शेयर बाजार इज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. All those things are coming in the system. Infrastructure spending is also indirectly coming. Share bazaar money is also, FDI is also coming. But one thing is to worry, हाँ, ग्लोबल को इंश्योरेंस हमको भूलना नहीं चाहिए. ग्लोबल में जो स्ट्रेस चल रहा है, कल को कुछ भी US में हुआ या मिडल ईस्ट में हुआ, अपना शेयर बाजार इज लॉट ऑफ डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल मनी. वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी टॉक. हम अपना स्पेकुलेट कर देवें, कमिटमेंट कर देवें और बाहर से पैसा कम आया, वी हैव टू बी careful. We have to insulate ourselves from that. Should the Mumbai market watch out for like a big price battle with so many players, with so many projects? Will that happen? Market टूटेगा कि नहीं, in your view? देखो यार, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है. सुनो. आज मार्केट जो है ना, लोकेशन ड्रिवन है. आज आप बोलो कि 25 साउथ का लोकेशन, बैंड्रा लैंडसेंड का लोकेशन, सी फ्रंट लोकेशन are very limited. They are called D flawless diamonds. D flawless की एक प्राइस होती है, पर भाव किस में टूटता है? D flawless में नहीं टूटता है, भाव एवरेज क्वालिटी में टूटता है. और उसमें जब टूटना लगता है ना, इट बिकम्स ब्लीडिंग. क्योंकि हर बिल्डर पीछे फॉलो करेगा कि भाई मेरा माल बिकना चाहिए. और जिस दिन बिल्डर फॉलो करना चालू करता है, क्लाइंट शेल में चला जाता है, वो डिसीजन मेकिंग बंद कर देता है. तो वी हैव टू सी दैट वी प्ले अ वेरी बैलेंस role in that, to see that we don't speculate. But I think that's already happening. Speculation तो पूरा चल रहा है अभी in terms of taking big bets. So for these non-prime locations, जैसे आपने कहा Bandstand, Worli Seaface, take them out. That's maybe 0.5%. कितना 0.5 ही नहीं. और I'll tell you,
जिसकी मिडिल एवरेज भी लैंड होती है ना, ही इज कंपेयरिंग कि वहाँ पे ये रेट चल रहा है, बट ही इज नॉट कंपेयरिंग कि उसके पास प्रोडक्ट क्या है. ही इज नॉट हैविंग अ सी फेसिंग प्रॉपर्टी. दैट प्राइस इज फॉर सी फेसिंग, बट एवरेज प्रॉपर्टी वाला भी वो प्राइस एक्सपेक्ट करता है. दैट्स अ चैलेंज. So what happens to those sort of projects? They are the overwhelming majority, right? I'll tell you, if builder ने बेच भी दिया ना, the thing to worry is the law. Client is the king. Client ने आज agreement कर भी दिया, and he is seeing the downturn coming, and he is seeing that market is being corrected. He will stop paying to. He'll stop. Edelweiss कहाँ है? Edelweiss, you are here. आपने माल बेचा, बिल्डर ने, आप बोलते हो माल बेचो, उसने बेचा, और कल को मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हुआ, फ्लैट परचेजर रेरा के अंदर बोल सकता है आई वांट टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन. तो क्या करेगा बिल्डर? उसने ज़मीन वाले को दे दिया, कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपया प्रीमियम चुका दिया, बिल्डिंग में डाल दिया, वो रिफंड कहाँ से देगा? दैट्स अ वेरी कैची सिचुएशन, एंड रेरा इज द वर्स्ट. रेरा कहता है कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इफ ही इज आस्किंग फॉर कैंसिलेशन यू हैव टू रिफंड. क्या होगा उस कैच सिचुएशन में? और क्लाइंट becomes worst, he becomes more panic because his capital is getting eroded. He wants to preserve his capital. वो बोलेगा घर भूल जाओ, मैंने जो लगाया मुझे वो पैसा दे दो, नफा नहीं चाहिए मुझे. तो क्या होगा? I'll tell you. इसका ये मतलब नहीं है कि अंधकार होने वाला है, but we have to be very cautious. We have not to speculate. सबसे पहले रेट रेस में बिल्डर को नहीं जाना है कि मेरे को कैसे भी लेना है, किसी भी टर्म्स लेना है. गलत टर्म्स पे लेगा तो गलत तरीके से उसको बॉटम लाइन को इफेक्ट पड़ने वाला है. और अभी क्या हुआ है लास्ट 2-3 साल में, मैं क्या देख रहा हूँ कि बिल्डरों ने ओवर ईट कर लिया है. दे आर च्यूइंग मोर देन व्हाट दे कैन डाइजेस्ट. दे हैव टू बी वेरी क्लियर कि मैं डाइजेस्ट क्या कर सकता हूँ. आपने 25-25, 30-30 प्रोजेक्ट ले लिए, कहाँ से पहुँचोगे, कहाँ से कंप्लीट करोगे? इट्स नॉट अ जोक. तो बिल्डर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओपन देयर आइज, डोंट ओवर ट्रेड फॉर गॉड सेक. यार हमने लास्ट 60 साल में कम से कम 10 मंदियाँ देखी हैं. हमको मालूम है जब कैपिटल बिल्डिंग बनाई थी, लेमैन के क्राइसिस आए गए थे, इट वाज ब्लीडिंग. ब्लीडिंग मीन्स माल बेचने के बाद भी पैसा नहीं आवे. वी हैव आवर ऑफिस, तो वी आर वेरी कॉशियस. हम जो काम करते हैं सोच के करते हैं. डील जाता है जाने दो, कोई रेट रेस में दौड़ रहा है दौड़ने दो. इट्स अ कॉशियस दैट यू सेड यंग बिल्डर्स. अभी यहाँ यंग तो कोई बिल्डर तो है नहीं, यहाँ पे सब अपने, एक है बेचारा, वो भी यंग बच्चा है, समझो वो मैच्योर्ड है. दे आर कॉशियस पीपल, दे विल नॉट स्पेकुलेट. पर जिनको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए. और मालूम है 4 बिल्डर डिफॉल्टर हुए ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज सच सबके ऊपर से हटा देंगे. ये पुल करने में नंबर 1 हो जाते हैं. गिविंग के टाइम पे सबसे पहले आएंगे आपके पास, और जब चादर निकालनी होगी सब पीछे पड़ेंगे, पैसा वापस करो. कहाँ से देगा बिल्डर? You all have to be very practical. Don't give to a person जिसकी performance capacity नहीं होगी. आप अभी NBFCs वगैरह की मीटिंग बुलाओ. Don't rat chase the people who are over trading. Okay. Just one step. No? मैं जरा गलत, you see I talk from my heart, you know, and once I'm talking I'll not talk hypocrite के very good very good. We have to be cautious. No, I think हर काम करो, दलदल है, पैर रख के करो, घुस मत जाना. I think just the point Mr. Wadhwa spoke about lenders, I think 95% of builders say that in private about lenders, of how they have played overall a negative role in spurring. मैं नेगेटिव तो नहीं बोलता. सुनो, they have supported. Without that support, builder wouldn't have been able to purchase the plot. But they should know their limitation also. Support कब तक करना, कब नहीं करना. Because आपको पहले ही बिल्डर का जन्म पत्री उसको MRI करके पैसा देना चाहिए, हेल्थ देख के देना चाहिए, परफॉर्मेंस कैपेसिटी देना चाहिए, और whether if contingency happens, whether he'll be able to close the project, whether he'll be able to finish the project. Project finish हुआ ना, नफा नुकसान सब good है. नहीं हुआ, then the problem starts. Since you spoke about projects getting complete, in your view, at this point, 6,000 plus projects currently going on in Mumbai, how many will actually get complete? नहीं सब होंगे यार. Let's talk positive. Let's give positive vibrations यार from here. Let us not say negative. But see, 6,000 तो अभी हैं विशाल. There are many in pipeline which are negotiating. 6,000 से ज़्यादा are on negotiation stage. ये सब होने वाला है. आज हर आदमी जो डोंगरी में रहता है, जो ग्रांट रोड पे रहता है, वो छोटे घर वाला भी सपना देखता है कि मेरा अच्छा घर होना चाहिए ना. बट वो ग्रीड में चले जाते हैं. जो उनको 2% ज़्यादा देता है उसके चक्कर में चले जाते हैं. दे डोंट सी द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन.
They have to see. They have not to be greedy. Okay. Just one couple of questions on the side away from this topic. One pattern which I think goes a bit unnoticed in Mumbai is that nowadays location does not matter as much as the building. I was telling you before the session that my brother visited a project in Borivali, which for many people in South Bombay would think that how do you attract prices of 45,000, 50,000 per square feet there? Has location stopped mattering as much and the project really be the standard performer? Does that really make a project now? See, I'll tell you, बोरीवली भले बोरीवली दिखता है, पर बोरीवली भी एक माइक्रो मार्केट है. वहाँ पे जो इतने सालों से जूने अब्जोपति लोग रहे हुए हैं, उनको सोशल सर्कल बोरीवली से निकलना ही नहीं है. उसको उसी खाऊ गली में नाश्ता खाना है, उसी खाऊ गली में खाना खाना है. उसको चाहिए मेरे हिसाब से बोरीवली में बेस्ट जगह मिलनी चाहिए एंड बिल्डर की कैपेसिटी होनी चाहिए वो विजनरी प्रोडक्ट बनाने के लिए. बोरीवली इज ऑल्सो अ मार्केट, कांदिवली इज अ मार्केट, एवरी मार्केट हैज अ मार्केट, घाटकोपर इज अ मार्केट, Mulund is a market, but product should be according to that need of people. Okay. Most people who come from outside Mumbai, when they look at our buildings, somebody who came, he mentioned that all the buildings look the same in Mumbai now. How do we change that to make sure that Mumbai sees aesthetically pleasing buildings? This is, sorry with due respect to corporation, सुबोध कुमार जी, वो ऐसा रूल बना गए 1.5 फुट का, 2 फुट का, 3 फुट का छज्जा, और जो करो, क्योंकि बिल्डरों ने चोरी भी की थी. Builders misrepresented, got misrepresented areas done. It's their mistake. They have created their own graveyard, So we had a lot of limitations. We couldn't do what we really wanted to do from elevational features so that building should look more attractive. It should look like a building is in Hong Kong, building is in Singapore, of that state. So builders said कि भाई ऐसा करो, बॉक्स बना दो, FSI को पूरे में काउंट कर दो, ग्लास की बिल्डिंग बना दो. तो जो बाहर से आता है उसको ग्लास अच्छा लगता है, पर आप जो उस ग्लास की बिल्डिंग के अंदर रहता है ना, उससे जाके पूछो हाउ इज फीलिंग. दिखने में अच्छा दिखता है, कांच में रहने के बाद ऑफिस में काम कर लो, योर कंसंट्रेशन इज ऑन योर लैपटॉप एंड योर कॉन्फ्रेंसेज एंड दिस. बट इफ यू आर स्टेइंग इन अ क्लोज बिल्डिंग, ग्लास बिल्डिंग विच डजंट बी इज नॉट क्लीन्ड रेगुलरली, यू विल फील मूंज. आपको अपने घर आंख के सामने जैसे पर्दा लगेगा हमेशा. इट्स नॉट अ हेल्दी लिविंग, नो क्रॉस, इट्स नॉट हैविंग प्लानिंग वेल. इट हैज टू बी वेंटिलेटेड. हाउस इज. So will that change going forward, or we'll just see more of the same? No. It has to change. It has to change because now law has recent amendments have come where corporation has realized that this is a pathetic way of doing. We told them, we went to corporation कि साहब ये आप housing board buildings बना रहे हो, you are not giving us a free hand. Allow us to make a beautiful building. So commissioner understood, but he has kept controls and he should keep controls so that we come out with innovative thought process. So in the medium term, we will start seeing aesthetically pleasing buildings. If the intention of builder is good, intention has to be there. Okay, I think most will infer that majority of builders don't have the skill set or the intent to probably make those sort of buildings because that requires courage. उनकी गलती नहीं है. बिल्डर आर्किटेक्ट को क्या बोलता है? अच्छी बिल्डिंग बना दो. वो ये नहीं बताता है क्या बनाओ. वो बिल्डर आर्किटेक्ट के साथ वर्कशॉप्स नहीं करता है. एंड इन बिल्डिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज MEP. MEP के ऊपर आजकल यंग जनरेशन ध्यान नहीं देती है. MEP इज लाइक योर इंटेस्टाइन्स, लिवर एंड योर ऑल इंटरनल ऑर्गन्स. इफ योर ऑर्गन्स आर नॉट हेल्दी, आप कोई भी एक्सपेंसिव लुई विटॉन की बैग लेके वॉक कर रहे हो और अपनी हेल्थ ठीक नहीं है, यू विल नॉट बी हेल्दी. सो इंटरनली बिल्डिंग हैज टू बी प्लान्ड वेरी वेल फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू and from fire point of view, from health point of view, from cross ventilation point of view. Rarely people take interest in that, rarely. और जिनका नहीं है वो प्रोडक्ट उनका अच्छा नहीं आएगा. Product will come out only when builder concentrates at every step. Okay, just some speculative questions. We have seen some transactions in Mumbai now reach levels of 1.4, 1.5 lakh rupees per square feet. Is there a ceiling to how high Mumbai prices can go for its super luxury segment? देखो यार, ये मार्केटिंग का तरीका है. आप लंदन में हैरिड्स में जाओ, आपको वहीं के बाहर बैग मिलेगी 2 लाख रुपए की, और हैरिड्स के अंदर आप अगर एक्सपेंसिव बैग ले 25 लाख की बैग मिलती है. रैट रेस है जो चल रहा है, उसके पीछे लोगों को जाना है. एड्रेस कि हमारा नेबर ये है, दे आर पेइंग मोर प्राइस, बट पीपल हैव नॉट टू बी फुलिश. दे हैव टू सी वेदर आई एम बाइंग अ राइट प्रोडक्ट, वेदर आई एम गिविंग अ राइट प्राइस फॉर द राइट. But are we now, you think, close to the peak? Because I think for super luxury, what all had to happen? I think too many things came together for super luxury to get their big homes last year.
Are we close to the peak, or you think we can reach levels like Hong Kong also? It's a very tricky question here. It depends on the product. If it's absolutely flawless material, then a person will give the price. Even to levels of developed Yes, nations? yes. आज अगर आपका ट्रिपल ए लोकेशन है और प्रोडक्ट ट्रिपल ए है एंड डिलीवरी ट्रिपल ए है, प्लानिंग अच्छी है, तो आदमी को शौकीन है. आज लोगों ने बहुत पैसा कमाया है लास्ट 5-6 साल में. They would like to use their money. Just before I was coming to the session, I was seeing some record deals across the world. New York had a deal of 8 lakh rupees per square feet. You're saying we could possibly. नहीं, that's not. It's That's- in long run हो सकता है अभी. Okay. Now, just within Navi Mumbai, Thane, Mumbai, where do you see prices going around in this market broadly? Which will remain stable, which will rise, which will drop? What's your call on that? It is depending on the need of the client, whether he is giving importance to his health, he wants to stay in Bombay in congested area, polluted area, और he would like. अभी कनेक्शन ये MTHL का बहुत अच्छा हो गया है. MTHL के कनेक्शन से लोगों को चॉइस बहुत अच्छी हो गई है. And the richest houses and the best houses in the world are in green zones. People don't want to stay in congested and confused area, where there are claustrophobic development. बंद 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 अभी हो रहा है. अभी जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं ना, आप विंडो खोलोगे सामने आपको बिल्डिंग में दूसरी का घर दिखता है. So if you want to live here, then you have to live that style. But if you want to lead a healthy life and a better life, then you have to go little to the greener area, which is not available in Mumbai. You have to go little out of Mumbai. Okay. And because distances have become very close now. So basically, long Navi Mumbai, short Mumbai. Where does Thane fit? See, I'll tell you, Thane is an old, typical thought process area, industrial township. City of Thane had got most of the employees working in the industry. और अभी जो थाना में कॉरपोरेशन ने 4 FSI कर दिया है ना, दैट वाज द बिगेस्ट डिफेक्ट. थाना का चाम खत्म कर दिया. जो सी FSI जो ग्रीड आती है ना, कॉरपोरेशन की भी, प्रीमियम की, बिल्डर की भी, कमाई की, उससे प्रोडक्ट की और लोकेलिटी का फ्यूचर की बैंड बच जाती है. ग्रीड ऑफ द सी हम FSI अगर आप 2 करोड़ 1.5 करोड़, यू मेक अ हेल्दी बिल्डिंग, इट कम्स आउट वेल. व्हेन यू आर मेकिंग मोर, you are congesting it more. Mumbai in India has the highest number of skyscrapers. जी. Do you think we in Mumbai could see buildings that go as tall as 100 floors? And then if it is, how viable are these projects? It's a time constraint, policy changes. Real estate is a very cyclic business. It is risky for a very high-rise building to be conceived. It takes, first of all, a lot of time. And still, what this infrastructure was speaking, engineers, quality, India is still not geared up. And most important is the fire equipments. In case of any emergency, in case of fire evacuation, what happens? अभी तक बॉम्बे ने वो नहीं देखी हैं टाइप तूफान एंड अर्थक्वेक्स. इतनी हाइट की बिल्डिंग शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्टील स्ट्रक्चर. इट कैन नॉट बी अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. वी हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग टू कंसीव सच प्रोजेक्ट. आई वॉज डिस्कसिंग विद अभिषेक लुधा. मैंने बोला तुमने 100 माले का कहते हैं इट वॉज माई रॉन्ग डिसीजन. उसने कहा था इट वॉज माई रॉन्ग डिसीजन. इट इज वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. वी हैव नॉट टू बी इमोशनल कि मैंने टॉलेस्ट बिल्डिंग बना लिया. अल्टीमेटली डिलीवरी टाइम पे दिया कि नहीं दिया, तुमने कमाया कि नहीं दिया, तुम्हारे स्टेक होल्डर्स ने रिटर्न्स कमाया कि नहीं कमाया. इट्स अ कॉम्पोजिट. क्लाइंट को डिलीवरी भी टाइम पे चाहिए. So basically, go tall but don't go super tall. हाँ, डोंट गो. सो दैट्स अ प्रैक्टिकल वे ऑफ. Okay. On that note, I'll take a few questions. How much time do we have for? Yeah. Okay. Varun? Hello. Ji. Good afternoon, everyone. So my question is in terms of the attitude in the real estate industry. For example, if you compare a Mumbai to the real estate industry in Delhi NCR, you will see a huge difference in terms of the attitude. Like if truth be told, from my own experience, I'm speaking that Delhi NCR is like the wild west of the real estate industry. Any reason why? See, Delhi NCR has got lot of land availability. It has been well conceived, well master planned layout. It was first roads were developed. किसी ने भी किया, पॉलिटिकल पार्टी ने गार्डन्स डेवलप किए. यहाँ मुंबई में लैंड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम.
एंड मास्टर प्लानिंग इज, इंफ्रास्ट्रक्चर आने से सब कुछ नहीं हो गया, यहाँ पे बाकी चीज़ों की बहुत लैकिंग है. No, so my question was in terms of the attitudes of the industry and the builders and the. Is the attitude of a Mumbai builder very different from a एक NCR? बात सुनो, एटीट्यूड सब जगह इंसान का ग्रीड का होता है. एनसीआर के बिल्डर्स ने भी जो मार खाई बिकॉज ऑफ ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग, बिल्डिंग 4 चालू किया, बनाई आधे में रोकी. जितने वहाँ के बिल्डर्स अटके हैं और जो गवर्नमेंट को इंटरफीन करके गवर्नमेंट की एजेंसी को देना पड़े, ग्रीड वही है. Human tendency of over trading is continuing to be there. Easy money should not be available to people who are over trading. I'm sorry, I'll complete your reply. Every day is not a sunny day. People who have seen Mandi, they'll be cautious. People who have not seen Mandi, God forbid they should not see, but it will be a disaster for them. वो दिल्ली भी उन लोगों ने ही मार खाई जिनने ओवर ट्रेड किया, बम्बई भी उन्हीं ने मार खाई जिनने ओवर ट्रेड किया. साइकोलॉजी सेम है, ग्रीड ऑफ पीपल. कितने टावर्स बंद पड़े हैं यमुना एक्सप्रेस पे, आप चले जाइए, अभी भी टूट रही हैं, बन रही हैं. रेरा में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रीड. आदमी ने माल बेच दिया और आगे बनाता गया. Why do you think we have not seen that phenomenon play out in a city like Bangalore? Their strike rate in terms of delivery to stall projects is very healthy. See, I'll tell you, बेंगलोर में बिल्डर्स को सक्सेस क्यों मिली है? उनको प्लॉटिंग ने बचा लिया. प्लॉटिंग्स, बंगलोज. सी, बेंगलोर थॉट इज खुद का बंगलो बनाना है. 90% वहाँ पे डील होती है बंगलोज की. बंगलो के अंदर कुछ नहीं, रोड बनाया, आपको बंगले का पोजीशन प्लॉट का दिया, आप अपना जब बंगला बनाए बना लो. तो बिल्डर इज आउट ऑफ दैट पिक्चर. रियल बिल्डिंग्स खाली डाउनटाउन में है. बाकी जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है इन पेरीफेरी इज ऑल लेआउट्स, गोल्फ क्लब्स. दे इट डजंट कॉस्ट मच. अभी हमने पनवेल पे लॉन्च किया, बंगलोज हमको कोई तकलीफ नहीं है बनाने में. ब्लीड करते हैं तो टावर करते हैं और 50 माले का जाओ तो और ब्लीड करेगा. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर डूइंग. विजय भाई, डिड आई सेटिस्फाई योर रिप्लाई ऑफ ग्रीड? The difference was that Delhi NCR land deals in the real estate industry is very often fraught with violence and in terms of non-compliance with the law. Compared to that, Mumbai builders and Mumbai real estate industry is quite law-abiding. And Basically, Delhi NCR में बहुत गुंडागर्दी है. देखो यार, सच पूछो, यहाँ भी किया है, कुछ निकल गए, कुछ नहीं निकले. लोगों ने गलतियाँ तो यहाँ भी की हैं. Okay, वरुण. जी विजय जरूर. भाई, एक ही सवाल था कि होम बायर्स नाराज हैं कि रेरा आजकल जल्दी फैसले नहीं देता. आप नाराज हो कि रेरा के पास होम बायर्स चले जाते हैं. तो मतलब हैज रेरा एक्चुअली स्टॉप्ड सर्विंग द पर्पस फॉर विच इट वाज? See, I'll tell you, वरुण, ये बड़ी कैच सिचुएशन है. मैं अपने कंपनी का जवाब दे रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग एनीबडी एल्स. गोल गोल बात नहीं करता. जब क्लाइंट फ्लैट खरीदता है, उसका इमोशन क्या है मैं नहीं जानता. वो वाइफ को खुश करने के लिए लेता है, या फैमिली के अंदर प्रेशर है कि मैंने ले लिया. अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैपेसिटी नहीं देखता है कि मैं फुलफिल कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा. ले लेता है कि घर में तो शांति होवे. और फिर कुछ टाइम बाद वो बिल्डर के साथ, ये प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूँ, वो बिल्डर के साथ करस्पॉन्डेंस करना चालू करता है. जस्ट टू डिले, ही डजंट वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड ऑफ फेल्यूर, जस्ट टू डिले द पेमेंट्स टू द बिल्डर. बिल्डर बोलता है रेरा को कि साहब इसने कमिट किया था, 5% दिया, आप बोलते हो 10% लेके एग्रीमेंट करो. एग्रीमेंट कर दिया, 10% के बाद दिल्ली दे ही नहीं रहा है और मेरी तो 90% पेमेंट ड्यू हो गई है. मैंने फ्लैट बेचा क्यों है? फ्लैट बेचा है कि उसकी पेमेंट टाइम पे आएगी, और वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देता है. तो रेरा और वो धर्म संकट में आते हैं कि हम ऐसे केस में डिसीजन क्या ले. हम बोलते हैं भाई तेरे को नहीं लेना है तो तू पैसा वापस ले ले, कैंसिल कर. आई एम टेलिंग यू माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. पीछे परचेजर है, मोलुंड में बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग पूरी हो गई है, कुछ परचेजर्स ने 90% पैसा दिया ही नहीं है. अब हु इज एट फॉल्ट? बिल्डर इज फॉल्ट, कस्टमर इज एट फॉल्ट. और वो बेचारा बोलता है कि मेरे को जहाँ से आना था हुआ नहीं है. It's a very dicey, it differs from case to case. Every case is different. एंड लास्ट, ओवर ट्रेडिंग पहले होती थी बहुत, आज भी होती है क्या? बिल्कुल हो रही है. आज भी होली builders चालू सुन होनी चालू हो गई है. अच्छा, अब शुरू. शरण, ओवर ट्रेडिंग चालू हुई या नहीं हुई?
इट इज़ डेंजरस। हाँ, तो यानी सच many बताऊं, stuck सच बताऊं, projects. मेरे को आने का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सेंस नहीं था। मेरे को विशाल ने इनवाइट किया। मैंने कहा मुझे थोड़ी आगे लाइट जरा थोड़ा क्या दिख रही है, अलार्मिंग दिख रही है। जिस हिसाब से जिस तरीके से रेट रेस चालू हो गई है ना, गलत है। मतलब जो हम कॉशस, आज 60 साल हो गए कंपनी को, तकलीफ़ें भी बहुत देखी, पर ईमानदारी से सब व्यवहार किया। कमाया कम कमाया बात की बात है। ये जो नए बिल्डर हैं उन लोगों को बोरो किया है, प्रीमियम्स भरे हैं, अभी उनका माल बेच नहीं रहा है क्योंकि सप्लाई बहुत हो रही है। एवरी सेकंड प्लॉट के ऊपर पतरा लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, मेरे को डर लगता है। अगर आप लोग रिपोर्टर्स कितने हैं, जर्नलिस्ट कितने हैं, मैं नहीं जानता। आपको जो, प्लीज़ मेरा नाम मत देना, क्योंकि मैं सिंसियर आदमी हूँ यार। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। जिस तरीके से रैट रेस चालू हुआ है, हमको समझ में नहीं आता इकोनॉमिक्स कैसे बैठेगा उनका। एम आई रॉन्ग शरण? So, since Sharan is in a freewheeling mood, the same question that I asked Mr. Wadhwa. 6,000 projects currently underway. He dodged the question. How many will get complete? Look, Vishal, let's be honest. The problem is, I think at least 50% of the guys don't have their financing or ऐसे मत बोल यार, capabilities. कल दिख देंगे हेडलाइन में आ जाएगा, तू नहीं, मार्केट गिर जाएगा। ऐसे मत कर यार। नहीं, uncle, अरे कुछ नहीं कमर करेगा। सोच के बोल यार। नहीं सुन बेटा, आई टेल यू। No, no, it's fine. It's fine. He can speak here. नहीं, सी आई टेल यू, सुनो, हमारा मॉरल कर्तव्य बनता है आँख जगाना, लोगों को सोने मत दो। दैट्स माई रीज़न एंड ड्यूटी टू कम हियर। मैं और किसी काम के लिए नहीं आया हूँ कि भाई ये जो ओवर ट्रेड कर रहे हो, मेहरबानी करो ओवर ट्रेडिंग करना बंद करो, और NBFCs को बोलो जो ओवर ट्रेड कर रहे हैं उनको फंडिंग बंद करो। जिस दिन तुम लोगों ने, आप NBFCs को सर्कुलर इशू करो, अभी एक आदमी 40 प्रोजेक्ट, हम साला 5 प्रोजेक्ट संभाल नहीं सकते हैं। मैं एवरी थर्सडे साइट पे जाता हूँ बिकॉज माई कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग क्वालिटी फ्रॉम मी। प्रफुल, आर यू विटनेस? Every Thursday for 4 hours, every week, once a week site visit is there. Builder has to be connected. Office में laptop पे building नहीं बनती है। Me and dad are on site every day, every morning. 6 days a week. Okay, so it's just last question to you. And then Uncle, I'll come to you. So I'll come to you. 6,000 projects. How many will get complete in your view? Look, Vishal, let's be honest. मत कहलवा No, यार। I don't want to give a number because look, I don't know everybody's financing or anything. Keep that aside. I think what's more important is for the buyer to only buy who they trust from. That's it. If they're convinced, they should buy. If they're not convinced, don't take a decision. Sorry, हाँ। Okay. Okay. Varun. नहीं बेटे, I'll tell you. In my opinion, जी वरुण। He's a neutral observer. So जी बेटे। नहीं, I'm saying, in my opinion, all the 6,000 projects will get completed. The only problem is there will be a delay. क्योंकि आज जो मार्केट है वो मार्केट ऐसा है कि भैया कोई बिल्डर अटक जाता है छोटा मोटा, तो बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं उनको बचाने के लिए। वी आर सीइंग दिस JV थिंग, वी आर सीइंग वेयर द बिगर डेवलपर्स आर टेकिंग द रोल ऑफ हेल्प करेंगे, उनको बनाएंगे। जो घर वाले हैं उनको घर आज अगर कल मिलने वाला है, हो सकता है कि एक हफ्ते बाद मिलेगा, यानी मिलेगा, बट ऑल द प्रोजेक्ट्स आई थिंक विल गेट कंप्लीटेड, दे ऑल विल बी डिलेड। बट one of the things I've noticed about RERA is that the builders have an approach now of putting timelines, and I saw one timeline of 2039 project getting complete. So that's one thing which builders keep as a buffer, and that's a massive buffer. It's literally for your children, that house. और विजय भाई जैसे हैं जो जाके हेल्प करेंगे भी लोगों को। हम नहीं, क्या होता है साहब, I'll tell you, ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास। आई एम सॉरी, आई एम डाइग्रेटिंग फ्रॉम द टाइम शेड्यूल। ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, पर वो जो बिल्डर मिस्टेक में आता है ना, वो इतनी मेस कर देता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए उसमें आने का मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि उसने इतना ओवर ट्रेड कर दिया, इतना पैसा ले लिया। आई टेल यू शरण, बिल्डर क्या करता है, दलाल को लगाता है, ये ग्राहक है, मैं तेरे को 4% नहीं 10% दलाली दूंगा, तू ले आ। दलाल का ना नाम इन्वॉल्व है, ना उसका स्टेक इन्वॉल्व है। दलाल अपनी 10% के लिए वो बकरे को ले जाता है कटवाने के लिए। So you have to be very careful with whom you are dealing, through whom you are dealing. Okay, fair point. Just one question. Firstly, thank you for this amazing conversation, Vishal ji and Vijay bhai. I think everyone was really, really amazed by the discussion that you had. Your honesty, Vijay bhai, what you mentioned very honestly was great.
My question to you is actually पहले तो Bombay needs 50 such Vijay Wadhwas if Bombay has to really look better and better. So please प्रार्थना करिए कि I know there could be only one Vijay Wadhwa, but पर प्रार्थना यार करिए future of Bombay के एक लिए. बात बताऊं, मार खाएला हूं तभी बोल रहा हूं. I understand, sir. Sir, bar, you said, of course, that Navi Mumbai is a better place to stay, but I think once you have stayed in Bombay, it's very difficult to migrate to Navi Mumbai. So, Vijay bhai, your answer, the best area to stay in Bombay would be, if someone has to stay in Bombay. It depends on your social circle. आप चाहोगे, आपकी वाइफ क्या चाहती है, आपके बच्चे क्या Sir, as चाहते per the हैं. quality of life in Bombay, with whatever So limitations. somebody who's an outsider, he's coming to Mumbai the first time. See, He has it no is baggage. depending on your budget, depending on your working, depending on your schooling of children. Everything has to be kept in mind. You can't see one thing. So house is such a thing. It's not one man. Office can be your decision. Because वहाँ पे वाइफ घर पे काम बेचारी बच्चों का ख्याल रख रही है. You can take a call. मेरा business circle किधर है. But as regards house is concerned, you have to see आपका bonding किधर है. जिसका बोरीवली में है वो तो बोरीवली में ही रहेगा. अरे बोरीवली में भी आज 50-60 हज़ार रुपए में चीज है और वहाँ 15,000-20,000 में भी चीज है. It is depending on which area you would like to stay. अब सिटी में भी है, सिटी में कंजेस्टेड है, ट्रैफिक बढ़ेगी, गाड़ियाँ रोज बढ़ती जा रही हैं, फ्लाईओवर पर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है. आज जो हम जल्दी आ जाते हैं वो आपको कन्वीनियंस रहेगा. रहने का तो आपको खुद को डिसाइड करना है परिवार को विच इज द राइट प्लेस फॉर यू ऑल टू Same स्टे. question to you, Vishal ji, if you had to ask as an expert. If in Mumbai, I think which are the undervalued locations, it's a separate answer. But I think in case of money is no object, and I think before the session we met and you mentioned, I think an indication of your budget. I think any of the good sea-facing plots are good. We should look at that. इफ बजट इज नॉट द क्राइटेरिया देन फाइन, जो अच्छा लगे ले लो तो ले लो. फिर घर है, सुनो ये बिजनेस नहीं है. फिर मार्केट डाउन या आप घर है, घर लेके भूल जाता है. जैसे ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी लेके भूल जाता है. Just to continue from his question, if you were a home buyer, how would you judge who's a good builder? उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो और उसका पर्सनल टच देखो, उसका प्लान देखो. सी आई टेल यू, प्लान रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द बिल्डर. If the builder has conceived the plan keeping in mind an invisible customer, I'll tell you, जब हम project, I'm sorry, I'm not marketing my company, जब मैं project conceive करता हूँ, I put myself, I'm a customer. Whether it is an affordable project of 300 foot या luxurious project at 25 South for 30,000 square feet, customer की philosophy same है. मुझे हवादार घर चाहिए, मुझे privacy चाहिए, वो उसका बजट अच्छा है. ही वांट्स 1,000 फुट का रूम, उसको 500 फुट का बाथरूम चाहिए, पर फिलॉसफी सेम है. 300 फुट वाले में भी 300 वाले को भी हवादार फ्लैट चाहिए, हेल्दी फ्लैट चाहिए, अच्छा फ्लैट चाहिए, उसको वेस्टेज नहीं चाहिए. अब एज अ बिल्डर हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर सेंट्रिक, हम उसके हिसाब से उसको हवादार फ्लैट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. वी शुड. अभी आई टेल यू, कोविड में वी हैड द हाईएस्ट सेल्स. Why? Because all our flats were planned in a healthier manner with cross ventilation. बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, उनको देना चाहिए. Okay, last question. Yes, sir. And you talk about cycle, can you elaborate this? Why 100-story building in Mumbai doesn't go as per real estate cycle? See what happens, साहब, हमने अपने कंपनी में every 6 to 7 years साइकिल आती है. जो वो साइकिल को सस्टेन कर गया वो सिकंदर, जो सस्टेन नहीं किया वो डिफॉल्टर. हमको साइकिल समझ के काम करना है. क्यों? एक लेमैन का क्राइसिस ने पूरे इंडिया को हिला दिया था, फाइनेंशियल मार्केट को हिलाया था, नहीं हिलाया था. लेमैन अमेरिका, कहाँ की बात, कहाँ हिला. आज अगर कल को मिडिल ईस्ट में जो ईरान ये वो सब चल रहा है, थोड़ा कुछ हुआ, फाइनेंशियल मार्केट, यूएस ने यहाँ से पैसा खींचना चालू कर दिया तो क्या होगा? शेयर बाजार का क्या होगा? इज एनीबडी थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स कि ये आंख बंद करके पट्टी लगा के बैठे हैं? हमने जो देखा है 7 से 8 साल में, 10 साल में एक वेव आता है. उस वेव में अच्छे से अच्छे लोग धुल जाते हैं क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी होल्डिंग की नहीं होती है. आदमी आज भले बोले मैं 5,000 करोड़ का हूँ, 10,000 करोड़ का हूँ, उसने फैला दिया है. उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगर उसको इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो जाएं, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू NBFCs एंड फाइनेंसर्स, फाइनेंसर भी उस वक्त टैप बंद कर देता है. वो अपनी सेफ्टी देखता है. ही डजंट वांट टू पुट गुड मनी ऑन रिकवरी ऑफ बैड मनी.
दैट्स अ फैक्ट। होता है कि नहीं होता है? सब हैं इधर। यू हैव टू बी केयरफुल। मैं जो 100 माले की टावर की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने दादर में एक प्लॉट लिया था, मेरे को 80 माले तक की FSI थी, हमने 39 पे उसको क्लोज कर दिया। क्यों किया? मैं 2.5 साल प्रोजेक्ट को फर्दर डिले नहीं कर सकता था। मैंने कहा डिले करूंगा, डिलीवरी कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट विल किल मी अवे। वो FSI छोड़ दिया। सॉरी। नहीं, मैं Okay. यही आपसे सुनना चाहता था। जी, मैं यही सुनना चाहता था आपसे, ताकि दूसरों को समझ में आए। इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, सरेंडर टू circumstances, हकीकत का मैं मुंह। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, ये 7-8 साइकिल को ब्रेक कर दिया है। दे कैन क्रिएट 100 माला बिल्डिंग इन 4 years. जी, Why don't we bring that technology, that wherewithal, that people? होने में that, आई टेल यू उसमें टाइम लगेगा। अभी तक वो माइंडसेट नहीं है। सबसे पहले बिल्ड, और वो टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे, वो ऑटोमेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज हम बनाते हैं, हम भी 7-7 दिन में स्लैब भरते हैं, उसकी लिमिटेशन है। जितनी बिल्डिंगें हमारे 30 फ्लोर से ज़्यादा जाती हैं, इट अदरवाइज वी टेक एज अ थंब रूल, जितने माले की बिल्डिंग उतने महीने में पूरी होनी चाहिए, बात खत्म। अगर 40 माले की बिल्डिंग है, 40 महीने का हम टारगेट रखते हैं, डिलीवरी इन 40 मंथ्स, हम कोशिश करते हैं 36 मंथ्स में डिलीवरी दे दें। यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। Okay. Okay. On that note, we'll close the session. Thank you, Mr. I'm Wadhwa. sorry if I've taken more time. No, no. A big round of applause, please, for Dr. Wadhwa and Vishal ji for moderating the session. Thank you so much, sir. So before you go, we have a memento for you from Amarnath Govindarajan, the co-founder of Suraja. A big round of applause for Dr. Wadhwa, please. While going, I'll just like to say that government should work more on gardens, schools and health of people. रोड्स तो हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स, ताली बजा दो उनके साथ, जो भी आवें, फडनवीस साहब आवें, जो भी आवें, कि सर रिक्वेस्ट है कि अभी आप स्कूल्स और हेल्थ वेलबींग पे ध्यान दीजिए। आप मन पे ले लेंगे तो हो जाएगा। वी शुड अटेंड टू दैट। थैंक्स।